ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ضلع فیصل آباد میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت احمدی افراد کی املاک پر سے کلمہ مٹانے اور ان کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ احمدی تاجر جن میں میاں لئیک احمد اور مراد فیملی کی شہادتوں کے بعد 28 رمضان المبارک کو دن دہاڑے ایک شریف النفس اور بے ضرر احمدی مکرم نصیر احمد بٹ کو ان کی دکان پر 9mm پسٹل کے فائر کر کے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 11:30 بجے گھروں آئے، گھروں آن کے انہوں نے ادھے گھنٹے سودا کردیا میرے نال لواتا۔ وہ منڈیاں سودا بھیج دیں سی تو میں لاؤں ہوں سا اتنے لا کے میں انہوں نے آدھے سیٹ ویٹ کر کے بہ جاتا سا کہ اسی انہوں نے آ جانا، مینوں 2 گھنٹے چھٹی دینی، میں آرام کرنا، پھر آن کے انہوں نے کام کرتے رہنا۔ میں ادھر کھلوتا ہوں، ادھر کھلوتے جی بھائی صاحب، سارے کوئی گاہک آ گیا، اسی ہوں سودا دے رہے ہیں۔ ادھر ایک موٹر سائیکل آیا، انہیں ہینڈل پائے لال رنگ کا ہیلمٹ ہے، کالے رنگ کا شیشہ جی، وہ شیشے تھانی پچھانے نہیں گیا، انہیں فائر کھڈے انہوں نے منہ والوں سدھے، منہ والوں فائر کھڈے۔ تو میں گاہک نو سودا دے کے ہٹیا، میں پٹاکے کتنے چلے، بھائی ہونی ڈگ پے۔ میں دیکھا میں وہ مگر بھجن کی کوشش کی ہے پر وہ گاہ نکل گیا سی، وہ نمبر پلیٹ بھی کوئی نہیں ہے، 70 وہ کول ہے، ایک گاہک نو ہی سودا دے رہے سی۔ واقعہ تسی کتنے سے؟ جناب میں اتنے بیٹھا سی، اس طرح میں کہ پٹاکے 3 چلے نا جی، اتنے گاہ کھڑوتے آ تو اسی جو وہ بیڑا انہوں کا بھائی وال انہوں نے کہا مر گیا، پھڑو پھڑو پھڑو، اسی بھی اتر کے بھجے ہیں تو وہ بندہ یہ میرا بچہ چھوٹا دستا بھی انہیں ہیلمٹ پایا سا، سکوٹر کے نقاب لیا سا، منہ تو ہرا نقاب نہیں ہوتا وہ۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں نہایت ہمدرد اور نیک شہرت رکھنے والے محنتی وجود تھے، جس کا اقرار آپ کے غرض جماعت ہمسایہ دکانداروں نے کیا۔ تسی جانتے ہو بٹ صاحب نو کنے عرصے تو؟ بہت 20 سال تو جانتے ہیں، بہت دیر جانتے۔ ہاں جی، ایسی شخصیت بہت چنگا آج تک سارے نال بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ، ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ، ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਖਲੂਸ ਅਖਲਾਕ، ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਛਾ ਬਣ کوئی اختلاف تو نہیں؟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ، ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਮੁਖਲਿਸ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲੌਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਾਡੀ, ਬਲਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। آپ یہ گل دسو، کوئی ذاتی ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک مذہبی ہوتا ہے، دونوں چ کوئی اختلاف نہیں؟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜੀ، ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਰਤਨ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਦਾ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਭ। اور سارے بڑے اچھے تعلق سی، بڑے پیار نال شروع تو رہندے ہیں، کنے عرصے تو نال جے؟ تقریباً 3 سال تو نال جے۔ اچھا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نال بہن بھراواں کی زندگی گزارن دے سکے، اچھی زندگی گزارن دے سکے۔ کیسی شخصیت سی تھارے نزدیک؟ کوئی نہ کوئی تنازع، کوئی جھگڑا کسے نال اج تک انہوں نے بدتمیزی کیتی نہیں، باجی باجی جی آپا جی دا سوا کسے نال اسی بات نہیں کیتی اتنے اج تک۔ شہید مرحوم کی طبیعت میں نہایت درجہ سادگی اور بردباری پائی جاتی تھی۔ جو شخصیت تھی ایک انتہائی پرسکون انسان کی شخصیت تھی، اور اگر کہا جائے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل سکون والی زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر، تو وہ ان میں سے ایک تھے۔ کسی قسم کا غصہ یا رش آف بلڈ اور گھبراہٹ نہیں ان کے اندر ہوتی تھی۔ نہایت اچھے آدمی تھے، غصے والی کوئی بات نہیں تھی ان میں، مطلب اگر کبھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا تھا اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے تھے، کبھی ہم نے ان کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔
मेरे पास ही इनकी दुकान है, आना जाना लगा रहता है अक्सर। मकसद दुकानदार एक कभी ना कभी तो गुस्से में आता है जब, लेकिन उनको कभी हमने गुस्से की हालत में नहीं देखा। वो बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हर एक का ख्याल रखने वाले थे। ये नहीं कि होता है बंदा सिर्फ अपनों का ख्याल करता है, हर बंदे का ख्याल करते होते थे। कभी किसी के साथ उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी किसी के साथ उन्होंने गुस्से से नहीं था पेश आना होता है, हर एक के साथ अच्छे से बोलना है। 23 साल तक रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक रहने वाले मुकर्रम नसीर अहमद भट्ट शहीद अपने अहले खाना के साथ निहायत शफकत से पेश आते थे। वो बहुत अच्छी शख्सियत थी, सारे बहन भाइयों से बड़े थे, सबका ख्याल रखने वाले, माँ बाप का इतना ख्याल रखते थे, बच्चों का, हमारा। मुझे जब से मेरी शादी हुई है, मैं जमात के काम करती हूँ, मुझे कभी उन्होंने, वो कहते थे मैं तो कोई जमात की खिदमत नहीं कर सकता, मैं मजदूरी करता हूँ, आप जमात की खिदमत किया करें। मैंने उनकी बदौलत ही इतनी जो भी थी उनकी बदौलत थी। बेटियों के साथ इतना प्यार से बातें करना, वो बेटियां जो थी वो ऐसे बाप से करती थी, मुझे होता था कि आप ऐसे क्यों अपने पापा से करती हो, अब आप बड़ी हो गई हो। तो कहना कोई बात नहीं, ये तो मेहमान है हमारे पास, इन्होंने कौन सा हमारे पास बैठे रहना है। बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, सबसे बड़े थे, सारों का बहुत ख्याल रखते थे, अच्छे थे सारों के साथ। पापा अच्छे थे, मुझे प्यार करते थे। ऐसी आते थी, ऐसे वो उनका बोलचाल था कि जिसको बहुत खूबसूरत कहा जा सकता है, बहुत आइडियल उनकी ज़िंदगी गुजरी है मेरी नज़र में। पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेरे सामने जो भी मामला आया है उनका, उसको उन्होंने एहसन तरीके से, इजी तरीके से, प्यार मोहब्बत से मतलब उसको किया है। कोई भी काम है, चाहे वो मुश्किल है या आसान है, या घर का है या बाहर का है। ये तो मिसाल ही नहीं ना हैगी इस मेरे बच्चे इन्हों से खूबी सी भी साढ़े तो बगैर सारे भैन भरावां तो बगैर एक सकिंट नहीं सी रह सकता। इन्हें रात नूं आउणा ना घर, इन्हें पूछना कि अम्मी फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना, मैं कहना आ गए सब। इन्हें सब तो आखिर तेरा कारोबार हो गया सी, इन्हें सब तो मगरों आना तो बस ये मैंने पूछ के सोना कि अम्मी सब, मैं कहा सब आ गए, घरे ही ने सारे, तो फिक्र ना कर। बहुत चंगा सी, हद तो भी ज्यादा। तो मैं दसिया ना बचपन में सी वो नौकरी करन कड्या पिया, अभी नियाणा बिल्कुल नियाणा, उदों तो लगा हुण तक उन्हें भैणों ने भी फायदा दिता, भरावां नूं भी दिता, रिश्तेदारां नूं, दोस्तां नूं, गुआढ़ियां नूं, मुसाफरां नूं, हर किसी नूं फायदा ही दिता, तकलीफ नहीं दी। निज़ाम जमात और निज़ाम खिलाफत से गहरा और आशिकाना ताल्लुक़ रखने वाले शहीद मरहूम की उम्र शहादत के वक्त 50 बरस थी। ये तो सबको पता है कि अहमदी है, और पूरी ये जो लाइन है इसके अंदर मेरा ख्याल शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको नहीं पता होगा कि अहमदी हैं। सबको पता है, अल्लाह अहमदी है अल्हम्दुलिल्लाह। जमाती एतबार से एक ऐसे मुखलिस फ़र्द जमात थे जिनका निज़ाम के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ और एक वफाशार अहमदी के तौर पे अपने बेटे की फ़िक्र होती थी। उनकी अलिया साहबा यहाँ की सदर जमात भी हल्के की रही हैं पहले, तो एक ऐसा घर में एक जमाती माहौल था जिसमें जमाती एक्टिविटीज़ होती रहती थी। जमात से इतनी उनको अकीदत थी, जब ये आज हुए हैं शहीद और रात को कादियान की बातें कर रहे थे हमारे साथ, बच्चों के साथ, कह रहे थे इस दफ़ा तो मैंने अकेले जाना है ना, अगली दफ़ा इंशाल्लाह सारे बच्चे जाएंगे साथ।
उनको होता, अगर खुतबा नहीं देख सकते थे तो आके मेरे से पूछते थे आज खुतबे में क्या कहा, हजूर ने क्या कहा, मेरे से वो पूछते थे कि मुझे बताओ। नमाजों का कहते होते थे पढ़ा करो, और इजलासों का कहते थे इजलासों पे जाया करो। मुकर्रम नसीर अहमद भट्ट शहीद का ख़ानदान खिलाफत सानिया में अहमदियत में दाखिल हुआ और अपने इखलास व वफा की आला मिसालें कायम करता रहा। ये हमारे दादा थे गुलाम अहमद भट्ट साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। उन्होंने अहमदियत कबूल की थी कादियान जाके। कादियान के करीब एक गाँव है, वहीं रहने इनकी थी रहाइश, वहीं से इन्होंने कबूल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसके बाद वालिदैन जितने भी हमारे चचा ताया सब पैदाइशी अहमदी हैं, क्योंकि हमारे दादा ने जब बैत की थी उस वक्त नई नई इनकी शादी हुई थी। अभी मुकर्रम नसीर अहमद भट्ट शहीद के छोटे भाई मुकर्रम हफीज अहमद भट्ट को भी आज से 17 साल कबल अहमदियत की बुनियाद पर ही शहीद कर दिया गया था। शहीद मरहूम के वालिदैन बावजूद पीराना साली के अपने 2 बेटों की शहादत पर काबिल रश्क अज़्म पर कायम है। मेरे हुण 5 ही आ, 6वां मेरा शहीद हो गया, एक पहले शहीद हो गया सी, ਉਹਦਾ नाम हफीज अहमद। मेरे यही जज्बात आ, मेरा खुदा जिस तरह खुश, मैं अपने खुदा नूं खुश करना, मैं किसी बंदे नूं नहीं करना, मैं खुदा नूं खुश करके कहनी आ भी खुदाया जे तेन इस तरह ही मंजूर आ ते मेरे बाकी भी बाकी जे तेन मंजूर ने इस तरह ही शहादतां ते मैं कोई नहीं घबराउंदी, मैं नहीं घबराउंदी। ये नेकां नूं मिलदी है शहादत। वो अपने घर दे सारे जियां नूं कहंदा रहा कि मैं ते इस पासे आ गया, तुसी भी आ जाओ, कि अल्लाह ताला दी रजा असल जड़ी आ वो अल्लाह ताला दी रजा ही है, इंसान दी नहीं। ये तो एक अल्लाह मियाँ ने हमें एजाज़ दिया है, इस पे हम खुश हैं, अल्लाह की रज़ा पे खुश हैं। हमें मुझे शहादत की बेवा कहलाने का हक मिला है। आपका जनाजा उसी दिन इफ्तारी के मान बाद फैसलाबाद शहर में मुकर्रम अमीर सब जिला फैसलाबाद ने पढ़ाया। अल्लाह अकबर। 2 घड़ी सब्र से काम लो साथियों, 2 घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफत जुल्म तो जोर टल जाएगी, आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, बादज़ा मरकज़ अहमदियत रबवा रवानगी हुई। जाएगी 2 घड़ी सब्र से काम लो साथियों। रबवा पहुंचने पर मजलिस खुद्दामुल अहमदिया मुकामी ने जनाजे का इस्तिकबाल किया और टोल प्लाजे से दारुज़्ज़ियाफ़त तक इसे एस्कॉर्ट किया। तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़ा। दारुज़्ज़ियाफ़त पहुंचने पर रबवा के बुजुर्गान और दीगर अहबाब अपने शहीद भाई के इस्तिकबाल के लिए मुंतज़िर थे। तकदीर नमरूदियत आप ही आग में अपनी जल जाएगी, है अज़ल से तकदीर नमरूदियत आप ही आग में अपनी जल जाएगी, 2 घड़ी सब्र से। शहादत के अगले दिन 29 रमज़ानुल मुबारक को इहाता सदर अंजुमन अहमदिया में सुबह 9 बजे साहिबजादा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहिब नाज़िर आला व अमीर मुकामी ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें कसीर तादाद में अहमदी अफराद ने शिरकत की।
साहिरों के मुकाबिल बना अज़दहा, ये दुआई का था मौजज़ा के आसा, साहिरों के मुकाबिल बना अज़दहा, आज भी देखना मर्द हक की दुआ, शहर की नागनों को निगल जाएगी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी। नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान आम में आपकी तदफीन अमल में लाई गई। खून शहीदान उम्मत का है कम नजर, रायगा कब गया था कि अब जाएगा, खून शहीदान उम्मत का है कम नजर, रायगा कब गया था कि अब जाएगा, हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल आएगी, फूल फल जाएगी, हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल आएगी, फूल फल जाएगी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो घड़ी सब्र से।